गुरुजी आपके चरणों में शत शत प्रणाम। गुरुजी की प्यारी संगत को प्यार भरा जय गुरुजी एंड सत श्री अकाल। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी कि आपने ये सेवा बख्शी है। So as we all know that every day, every breath with the Guruji is a new satsang, and Guruji always looks after us, and he's been looking after our smallest to smallest wishes and things in life. So Shukrana Guruji again for looking after me and the whole Guru Parivar and my whole family, everybody. So I'll start with how I connected with Guruji, what's my journey about with Guruji, when did I connected with him. So it was in the year 2014 when I got connected with Guruji in the month of May. After I was हर एक की लाइफ में एक कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है. I got married in the year 2010, and I'm basically from Delhi, from a Sikh family जो गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेकते हैं और उन्हीं को मानते हैं. और किसी के सामने हमें यही सिखाया गया था कि कहीं पे भी आप किसी के सामने मत्था नहीं टेको, सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही मानना था. यही हमें टीचिंग दी गई थी, मतलब from my dad. He is an ardent Sikh himself, a very pure soul. So that's what he taught us to do our nitnem part, daily prayers, गुरुद्वारे जाओ, गुरु के सामने ही झोली अड्डो और जो मांगना है उनसे मांगो. और उनको सिर्फ मांगो भी मत, उनको यही बोलो जो तेरा भाड़ा मीठा लगे. तो जो आप दोगे उसी में मैं खुश रहूं, उसी में ही मेरी भलाई हो. और मैं this is what I was always taught. But as you know, when we get married and we move countries, you face a lot of issues, problems, emotionally, financially, in-laws. There's a big change. आप पूरी अपनी जिंदगी छोड़कर एक नई फैमिली में एडजस्ट करते हो, तो उसी के साथ आप कई बार बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी लाइफ में. देयर आर लॉट ऑफ हर्डल्स. आई वोंट गो इनटू डिटेल्स, बट नेगेटिविटी होती है लाइफ में, एंड you don't bond with family, you don't bond with your husband at times. There are fights on little things, big things, and it leads to a major palaver. So this is what happened with me. Things were not right in my life, and I was always depressed. I used to cry a lot. इतना रोती थी कि ऐसा हो गया था. when I used to leave for job, मैं 1-2 घंटे पहले घर से निकलती थी झूठ बोलकर कि मेरा जॉब आज जल्दी स्टार्ट हो रहा है. and I just wanted to run away from that house and just go in my car and park somewhere in the corner and just cry. So this continued, and मैं अपने घर से निकलती थी और आगे एक गली छोड़कर अपने घर से ही एक और घर के सामने गाड़ी खड़ी करके 1-1 घंटा रोती थी, जस्ट रोती थी. और सिर्फ वाहिगुरु से आई यूज्ड टू से, डू यू इवन एग्जिस्ट? आप अगर एग्जिस्ट भी करते हो तो कुछ तो करो मेरी लाइफ में, कुछ तो इम्प्रूवमेंट करो. मतलब व्हाई एम आई गोइंग थ्रू सो मच पेन? आई मीन इतने भी माड़े कर्म हो सकते हैं किसी के, दैट as I was just 26 years old, and इतने बुरे कर्म भी हो सकते हैं. इतना भी कोई सफर कर सकता है. I just used to go there and cry and cry and cry. Little did I know कि मैं जहाँ पार्क कर रही हूँ वो किसी एक गुरुजी की संगत का घर है. वो मुझे बाद में पता चला. And one night I was just going through Google, and एक बुद्धा चैंट मिला, ओम यंग करके. एंड वो कहते थे कि when you do that chant, you bring lot of positivity in your life. And so ऐसे ही सुबह 4 बजे उठ के I started doing that chant through YouTube. I didn't know the full wordings. I still don't know because that's how I started. एंड मैंने वो चैंट प्ले किया और मैं बैठ गई
अपने बेड पर ही, एंड I started chanting, and then I saw Guruji's mantra jap coming up on YouTube. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai, Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. And I just clicked on it because Guruji का जो face था वो बहुत familiar था. Because I used to see my Delhi friends WhatsApp DPs with Guruji's Swaroop. And मैं हमेशा I used to be inquisitive to know about him, that who is he. इन्होंने अपनी डीपी छोड़कर गुरुजी के डीपी कैसे लगा लिए हैं, who is this man. And back then I used to only see his Swaroop in a black chola. So उसी रात को जब मैं सुबह उठी तो मैंने वो जब मंत्र जाप सुना तो बहुत अच्छा लगा. एंड देन आई थॉट दैट आई शुड गेट इन टच विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम दिल्ली. दिल्ली में तो अब सुबह हो चुकी है, लाइक इट्स गुड टाइम टू व्हाट्सएप देम. सो आई सिंपली टेक्स्टेड हर दैट यू नो who is this guy, and I have just do this mantra jap. And oh, is he a Babaji? Is he can I talk to him? Can I see him? Where is he? Whom are you following? So she said, no, संजोती गुरुजी महासमाधि ले चुके हैं, इनको हम गुरुजी के नाम से जानते हैं. एंड इन्होंने बहुत मिरेकल्स किए हैं हमारी लाइफ में, मेरी फैमिली में, मेरे भाई की लाइफ में. एंड आई विल फाइंड इट आउट फॉर यू. यहाँ पे जहाँ तुम रहते हो लंदन में, वहाँ पे भी कहीं सत्संग ज़रूर होते होंगे. एंड बस तुम जाओ एंड जस्ट with full faith and with full surrender just go and अपने आप को उनके सामने सौंप दो. So I said, but how do I find कि मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ? So she said, I'll just log into Guruji Maharaj website and start reading his satsangs, and you'll find a lot of peace in them, and then you'll get your answer itself. I don't need to say anything to you, and just get in touch through that website. वहीं पर आप you can find कि nearest सत्संग कहाँ हो रहा है. तो मैंने कहा ठीक है, I'll go. और संगत जी मानेंगे नहीं आप, वो पूरा ही सुबह मेरी गुजर गई. सुबह 8-9 बजे तक मैं कंटिन्यूसली सत्संग पढ़ती रही सारे. एंड I really wanted to attend one of the satsangs. So I just sent my details and got in touch with Tulika auntie. At that time in 2014, Tulika Didi used to do satsangs in Hampstead, and a very pure soul. Thank you, Guruji, for blessing me with such good people in my life. And she was very, very sweet and very welcoming. And she said that we do satsangs every Thursday evenings. And so it was a Monday when I got in touch with her, and she said you can come on Thursday, attend a satsang, and I'll just share my details with you, and when you come here we will add you into our group as well, where we share our invites. So it was very easy. And that day तो मैंने बहाना मार के निकल गई घर से बोलकर कि you know I'm going to see my friend and we are going for a dinner outside. So that's how I went. 7 बजे सत्संग शुरू होता था और मैं 6:30 पहुंच गई थी उनके घर. और वहाँ पे शास्त्री जी बैठे हुए थे, पंडित शास्त्री जी, जो शिव पुराण की रीडिंग करते थे एंड वो फिर व्याख्या भी करते थे. तो वो भी बहुत अच्छा लगा. And when I went there, I just saw a gaddi of Guruji with Guruji's this big swaroop, which you can see here. And instantly, I was like, okay, how do I do matha tek rahe hain sab? How do I do matha tek? मतलब हमें तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने matha टेकना है. But I was open to it. मैंने बहुत खुले दिल से गई, matha टेका. फिर आरती से शुरुआत हुई, हमने आरती की, उन्होंने मुझे भी आगे किया. I participated in आरती. That was the first time I did आरती. जोत भी जलानी नहीं आती थी, कुछ भी नहीं आता था, बट धीरे धीरे गुरुजी ने सब सिखाया. What are do's and don'ts of satsang and what is how you do a satsang and everything. So जैसे ही हम वहाँ रूम में बैठे, शबद गुरबानी शुरू हुई. And
एज आई टोल्ड यू कि मैं तो सिख फैमिली से हूँ, तो गुरबानी से तो बिल्कुल वाकिफ हूँ। तो बहुत बहुत अच्छा लगा गुरबानी सुनकर, शब्द सुनकर। इतना तो कनेक्ट, मतलब मैं गुरुद्वारे में भी कभी रागी भाई जी को सुनकर नहीं हुई होंगी जितना मैं उस दिन सत्संग में बैठकर कनेक्ट हुई। एंड आई सॉ सम संगत क्राइंग, एंड बिकॉज दे वर इन द मेडिटेशन एंड everybody was in their own trance. बहुत अच्छा लगा विद दैट फ्लो। और चाय प्रसाद हुई। मतलब मेरी फ्रेंड ने पहले ही बोला था कि जो भी तुम्हें वहाँ पे मिला, चाय प्रसाद के साथ समोसा, मट्ठी, वट एवर आपको ऑफर हुआ, तुम्हें सब कुछ लेना है, मना नहीं करना। तो जैसे उसने बोला था मैंने वैसे ही फॉलो किया, बिकॉज शी सेड उसमें सब ब्लेसिंग्स हैं। लंगर में आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सो लंगर 4 लोगों में शेयर होगा, जैसा वहाँ पे भी तुलिका दीदी के घर भी ऐसे ही हुआ। उस सत्संग में हम 4 लोगों में बैठकर थाली में इकट्ठे लंगर खाते थे, और मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ से एतराज़ नहीं था। आई वॉज टोटली ओपन टू इट, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट। देयर वॉज सो मच ऑफ डिसिप्लिन, क्लेनलीनेस। एंड पहले दिन ही मुझे गुरुजी ने अपनी रोज फ्रेग्रेंस से ब्लेस किया। एंड आई वाज शॉक कि मैं तो बहुत दूर बैठी हुई थी दरबार से, बट फिर भी वहाँ पर रोजेस जरूर थे दरबार के पास, पर मैं दरबार से बहुत दूर थी। तो आई वॉज रियली लाइक, आई रियली वॉन्टेड टू नो कि इतनी दूर से कैसे इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही है। मुझे तब भी पता नहीं था कि गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं, रोज फ्रेग्रेंस से भी गुरुजी ब्लेस करते हैं। सो आफ्टरवर्ड्स बहुत अच्छा गुरु परिवार मिला। दे वर वेरी नाइस पीपल, वेरी स्वीट। सो आई आस्क्ड वन ऑफ देम कि आपको रोजेस की फ्रेग्रेंस आई? एंड शी सेड हाँ, गुरुजी तो ऐसे ही ब्लेस करते हैं, मेरे गुरुजी तो मेरे ड्रीम्स में भी आते हैं। And I was like, okay, that means I was blessed and I was very happy। और एक चीज वहाँ पे सिखाई गई थी कि जब आप सत्संग से फिनिश होता है, लंगर खाते हैं, गुरुजी की सीधा आज्ञा लीजिए और सीधा अपने गाड़ी में बैठ के घर जाओ। डोंट टॉक विद एनीवन, बिकॉज यू आर पासिंग योर ब्लेसिंग्स टू दैट पर्सन, टू दैट संगत। सो दिस आई रियली स्ट्रिक्टली फॉरवर्ड, बिकॉज मैं इतनी भूखी थी ब्लेसिंग्स के लिए कि बस सब कुछ ठीक हो जाए मेरी लाइफ में। धीरे धीरे सब ठीक भी होने लगा। बहुत जो प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन। वन नाइट इट वाज अ रियली बैड नाइट for me and my husband. We had a really big fight and we slept on a bad note। and बस तब गुरुजी से कनेक्ट हो गई थी, तो मैंने सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप किया और मैं सो गई। एंड इंस्टेंटली सब कुछ सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग बिल्कुल ठीक हो गया, बिकॉज आई न्यू दैट गुरुजी वॉज ब्लेसिंग मी। सो गुरुजी वॉज ब्लेसिंग मी एंड माई हस्बैंड बोथ। सो ये एवरी थर्सडे मैं सत्संग पर जाती थी तुलिका दीदी के घर, और एवरी मंडे आफ्टरनून आई यूज्ड टू गो टू तानी आंटीज फार्म हाउस। उन्होंने बहुत सुंदर गुरुजी का मंदिर बनाया हुआ है। एंड बहुत अच्छा लगता था। तो ये बिल्कुल फिक्स हो गया था, मंडे आफ्टरनून एट तानी आंटीज सत्संग मंदिर, गुरुजी's मंदिर, एंड ऑन थर्सडे इवनिंग्स एट तुलिका दीदीज। So my family started questioning me कि तुम कहाँ जाते हो? Monday को तो it was easy to just lie and say that I'm going to my job, but Thursday evenings it was becoming a little more dodgy and questionable for them कि मैं कहाँ जाती हूँ। तो मैंने सिंपली यही बोला कि हाँ, मैं सत्संग पर जाती हूँ और यहाँ पे हैम्स्टेड में सत्संग होते हैं। तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, because I used to live with my mother-in-law and sister-in-law, so they didn't say anything। And Paul, my husband, he said that, okay, I will go with you, I will stay in the car, but I will not go inside। I said, okay, you take me, because he didn't want me to drive all the way from West London to Hampstead। So I was open to that as well। I said, okay, I'll have a company। So he used to come with me, and
सो जब बैक इन ओल्ड टाइम्स जो संगत बोलती हैं कि गुरुजी पहले ड्राइवर्स की और गनमैन्स की को चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद की देते थे, दैट इज़ वेरी ट्रू। बिकॉज मुझे हमेशा जब मैं सत्संग में अंदर बैठी होती थी दरबार में, तो मुझे यही टेंशन होती थी कि बाहर पॉल गाड़ी में क्या कर रहे होंगे, पानी, वो उस टाइम मतलब रात का समय होता था तो डिनर टाइम होता था, मुझे तो लंगर मिल जाता था, तो पॉल कब घर जाएंगे, डिनर खाएंगे और क्या होगा। तो बाद में 2-3 सत्संग अटेंड करने के बाद मुझे पता चला कि पॉल को तो संगत बाहर ही जाकर चाय प्रसाद भी दे रहे हैं, लंगर भी दे रहे हैं, सब कुछ उनको सर्व हो रहा है, तो गुरुजी उनको वैसे ही ब्लेस कर रहे हैं। सो आई वॉज सो हैप्पी टू नो दैट। सो ऐसे ही आई मेड मुझे अपने घर के पास ही संगत मिल गई, जो हम इकट्ठे पूल इन कर कर गाड़ी में, कभी उनकी गाड़ी में कभी मेरी गाड़ी में, हम इकट्ठे होकर संगत एवरी थर्सडे नाइट को जाते थे लेडीज। सो एक दिन किरण आंटी, रितिका आंटी, उनका घर मेरे घर के बहुत पास में था, और ये बात मुझे गुरुजी ने कभी रियलाइज होने दी ही नहीं कि मैं जहाँ पहले संगत जी, मैंने जैसे आपको मेंशन किया, जहाँ मैं गाड़ी पार्क करके रोती थी, वो किसी संगत का घर था, और वही किरण आंटी और रितिका आंटी का घर था, जहाँ से मुझे गुरुजी ने अपना पहला स्वरूप ब्लेस करवाया, और किरण आंटी ने मुझे एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप दिया जो मैं अपने घर में रख सकती। एंड तब मुझे पता चला कि गुरुजी तो ऑलरेडी मैं कनेक्ट हुई नहीं थी, और गुरुजी मुझे पहले से ही ब्लेस कर रहे थे, क्योंकि मैं उनके घर एक संगत, गुरुजी के दरबार के एक संगत के घर के बाहर ही गाड़ी पार्क करती थी, और मैं वहां पे गुरुजी के आगे ही रो रही होती थी। सो दिस इज हाउ गुरुजी कनेक्टेड दोज डॉट्स, दैट यू नो आई वॉज वॉचिंग ओवर यू, एंड तुमने मुझे पुकारा और मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया, मैंने तुम्हें अपनी शरण में लिया। ऑल्दो व्हेन आई गो बैक एंड सी, Guruji has been blessing me from I don't know how many years and how many जन्म्स, जैसे ओल्ड संगत कहते हैं कि हमें तो पता भी नहीं है कि हम कौन से जन्म से कनेक्टेड हैं। दैट इज वेरी ट्रू, वी डोंट नो हम कौन से जन्म से कनेक्टेड हैं गुरुजी के साथ। तो ऐसे ही मुझे भी फील होता है, बिकॉज व्हेन आई गो बैक टू दिल्ली या चलिया रखती थी गुरुद्वारे का, तो मेरी एक नेबर फ्रेंड थी, वो हिंदू थे, और वो एवरी मंडे शिव जी के मंदिर जाती थी, तो मैं भी उसके साथ शिव जी के मंदिर भी जाती थी, और वो जो जल चढ़ाती थी, जो भी करती थी, मैं भी उसके साथ वही करती थी। वो मेरे साथ गुरुद्वारे जाती थी और मैं उसके साथ मंदिर जाती थी। तो ये कनेक्शन पता नहीं कब का है, यू डोंट नो। दैट इज राइट, वी डोंट नो when did Guruji started blessing us. That is very true. So this is how my journey started, and बहुत अच्छा लगता था गुरुजी के साथ। And after May, in July on Guruji's birthday day, then Tani auntie again, उन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था अपने फार्म पर ही गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेशंस का, एंड वहाँ पे मैं सुखी आंटी से मिली, एंड सब उनको गले मिल रहे थे। तो उन्होंने कहा, मुझे किसी एक और संगत ने कहा कि ये गुरुजी की बहुत ब्लेस्ड संगत है, और इनको गुरुजी अपनी बेटी बोलते थे, और वो आयरलैंड से आई थी। वेरी नाइस auntie, very very positive. Guruji, please bless her. She has always guided me on the right path. So everybody was hugging her, and then one of the sangat said, chalo, let's meet her. So even I went and met her, and she instantly hugged me, और बहुत टाइट हग किया, और उन्होंने कहा बधाई हो, खुशखबरी आने वाली है। तो आई गॉट शॉक्ड कि इसका क्या मतलब है। एंड देन वन ऑफ माई फ्रेंड सेड, ओ गुरुजी हैज ब्लेस्ड यू, एंड सी तुम्हें कितनी जल्दी गुड न्यूज मिलने वाली है। लिटिल डिड आई नो दैट नेक्स्ट मंथ इन August I had conceived, and
आई नेवर आस्क्ड फॉर गुरुजी, बट गुरुजी ने खुद ही ब्लेस किया. एंड गुरुजी ने एक बहुत प्रिटी सी एंजल ब्लेस की मुझे in 2015. Her name is Rubani, and I was blessed with a beautiful baby girl. That was my joys, my happiness had no boundaries. Shukrana Guruji, thank you Guruji again for blessing me with such a beautiful baby. बहुत प्यारी है. And 2 हफ्ते पहले ही मैंने जब कनेक्ट किया तो she was born on a Monday, and her birth date totals up to 7. The time she was born was totals up to 7. So गुरुजी तो blessed बच्चा ही दिया है उन्होंने, no doubt, और कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है. ऐसे ही गुरुजी के साथ जर्नी बहुत अच्छी रही. And then we went to India in the year 2016. It was my sister-in-law's wedding. I could only go to Bade Mandir just once because my daughter, she was very small. She was just only 8 months old. तो एक ही बार मैंने बहुत रिक्वेस्ट की अपने भाई को और अपनी सिस्टर को जो दिल्ली में रहते थे कि प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर लेकर जाओ. तो मैंने अपने पापा को, अपनी मम्मी को, अपनी बहन को, अपने भाई को, हम सब इकट्ठे होकर मैंने उनको मनाया और मैंने कहा प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर जाना है, इट्स नॉट दैट फार, प्लीज़ टेक मी. तो एज अ व्हाट यू से इंटरैक्शन, कोई अच्छी हम जगह पे जा रहे हैं, वो सब इकट्ठे हो गए. उन्होंने कहा ओके लेट्स गो. मैंने कहा मैंने बहुत सुना है, बहुत सुंदर मंदिर है, चलो दर्शन कर कर आते हैं. तो मैंने तो सब कुछ पढ़ा था बड़े मंदिर के बारे में, अबाउट इट्स ग्लोरी, अबाउट इट्स गुरुजीज 12 तीर्थ का पावर है उस बड़े मंदिर में. तो हम चले शाम को, एंड मेरा भाई तो अंदर गया नहीं बड़े मंदिर के, बट माई सिस्टर एंड माई मॉम एंड माई डैड, दे ऑल वेंट विद मी इनसाइड. सो मैंने पापा को बोला था कि चाय मत पियो घर पर, और हम वहीं पर जाएंगे, वहीं पर हमें चाय भी मिलेगी, चाय प्रसाद भी मिलेगा, और लंगर भी वहीं पे करके आएंगे. पापा, वी विल नॉट हैव डिनर एनीवेयर आउटसाइड. दिस इज हाउ आई परसुएडेड देम कि प्लीज आप चलो किसी तरीके से. और मैंने कहा उस लंगर में बहुत ब्लेसिंग्स है, क्या पता हमारे कोई कष्ट दूर हो जाए, आपकी कोई प्रॉब्लम्स दूर हो जाए. लेट्स गो, गुरुजी विल ब्लेस यू ऑल. सो माई ब्रदर, उसने गाड़ी पार्क की और हमें बहुत फटाफट एक सेवादार अंकल आए, उन्होंने हमें अपनी गाड़ी में बिठाया, शटल सेवा जो होती है, हमें बड़े मंदिर के पास लेके वेरी स्मूथली सब कुछ हुआ. बिकॉज मेरे पास रुबानी थी, मेरी छोटी सी बेबी गोदी में, तो हमें दर्शन भी बहुत जल्दी सेवादारों ने करवाए. किसी क्यू में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ी. और हमें बाहर लंगर, जहाँ अब तो मैं तो एक ही बार गई हूँ, बट बाहर जो ग्राउंड था वहाँ पे तब लंगर सर्व होता था, और हमें वहाँ पे बिठाया. और जैसे ही गुरबानी शब्द फिनिश हुआ, उन्होंने लंगर सर्व किया, तो माई डैड ही सॉ मी, ही सेड वेयर इज योर चाय, आई एम इन अर्ज ऑफ चाय राइट नाउ, आई वांट चाय. आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैं तो झूठी पड़ गई गुरुजी, आप चाय तो सर्व हो ही नहीं, क्या हुआ, हम शायद लेट पहुंचे हैं. तो मैंने सोचा चलो मैं किसी सेवादार अंकल को ही बोल देती हूँ कि हमें चाय नहीं मिली है. और आप यू वोंट बिलीव संगत जी, वहाँ पे वो दरी बिछाई गई थी कि हम लंगर के लिए बैठे, और मैंने सिर्फ एक सेवादार अंकल को बोला कि हमें चाय नहीं मिली है. तो लंगर सर्व हो रहा है और हम 4 लोगों के लिए, मेरे लिए, माय सिस्टर एंड माय मॉम एंड डैड, उनके लिए हम चारों के लिए चाय भी आई. सो गुरुजी रियली वांटेड टू ब्लेस ऑल 4 of us, एंड हमें चाय भी मिली और लंगर भी मिला. और बाहर मेरे भाई को, जैसे मैंने पहले बोला कि गुरुजी रियली लुक्स आफ्टर हिज ड्राइवर्स, हिज ऑल ऑफ हिज संगत, नॉन संगत कोई भी हो, गुरुजी लुक आफ्टर करते हैं. तो मेरे भाई को भी बाहर चाय प्रसाद पार्किंग में और बिस्किट एज अ लंगर ब्लेस किया गुरुजी ने.
तो हमें चाय मिली और लंगर मिला, हम बैठे, वी ऑल गॉट डिस्पर्स्ड, और जैसे ही जिसके साथ हमारी सीटिंग बनी हमने लंगर किया. सो माई सिस्टर वॉज विद मी एंड 2 अदर संगत इन फ्रंट ऑफ अस वर सिटिंग एंड वी वर शेयरिंग द थाली. तो जैसे ही मैंने एक रोटी ट्राई की खाने की, एंड आई कुडंट ईट संगत जी, एंड मुझे वॉमिटिंग आने लगी एंड आई वॉज बैक एंड फोर्थ टू द टॉयलेट. एंड मैं आती थी, एक गिराई खाती थी लंगर की और मैं जाकर वापस आई यूज टू टेक इट आउट इन द टॉयलेट. सो इट हैपेंड 3 to 4 टाइम्स कि मैं लंगर पूरा फिनिश नहीं कर पाई, और जो जितनी संगत थी वहां पे सबका लंगर फिनिश हो गया था. उस ग्राउंड में सिर्फ मैं, मेरे डैड, माय मॉम एंड माय सिस्टर वर वेटिंग फॉर मी कि मैं आऊं, और सेवादार जी वो सब वेट कर रहे थे कि मैं आऊं और मैं अपना लंगर फिनिश करूं. इट वॉज वेरी ऑकवर्ड, बट आई कुडंट ईट दैट लंगर दैट नाइट. एंड मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि ये तो आपको ही फिनिश करना पड़ेगा, ये जो मेरा बचा हुआ मेरा लंगर है, मेरे हिस्से का आपको खाना पड़ेगा. मैं तो एक और बुरका भी अपने मुंह में नहीं डाल सकती, आप प्लीज फिनिश करो. दीज आर स्पेशल ब्लेसिंग्स फॉर यू. आई गेस गुरुजी आपको ब्लेस करना चाहते हैं. मुझे जितना ब्लेस कर सकते थे उन्होंने शायद कर दिया होगा, बट ये आपकी ब्लेसिंग्स है, आपको एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स मिल रही है, आप ये लंगर खाओ. तो उस बेचारी ने जितना एक्स्ट्रा था, शी फिनिश्ड इट. somehow she finished that लंगर, एंड हम घर की तरफ आए. और मैंने कभी गुरुजी से ये क्वेश्चन नहीं किया कि गुरुजी आपने मुझे उस दिन लंगर क्यों नहीं मैं खा पाई, या मेरी बहन को क्यों दिया आपने. बट ये दिमाग में हमेशा रहा कि मेरी बहन ने एक्स्ट्रा लंगर खाया. सो नाउ आई एम कमिंग टू that how my sister, she doesn't follow Guruji. Nobody follows Guruji in my family except me and my daughters. And but how Guruji blessed my sister in 2016 with that extra langar in today's pandemic. So last month my sister was COVID positive. उसको कोविड हो गया था, एंड हम सब बहुत परेशान हो गए थे. और आपको पता है किसी भी फैमिली मेम्बर को ये प्रॉब्लम हो तो सब परेशान हो जाते हैं. बट मेरी सिर्फ एक ही अरदास थी गुरुजी के साथ कि गुरुजी वो तो बहुत छोटी है, उसकी अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई है, प्लीज़ उसे ब्लेस कीजिए. उसकी 1 साल हुआ शादी को, प्लीज़ उसको ब्लेस करो, जो आपको अच्छा लगता है आप उसके लिए करो. सो गुरुजी ने उसका वो सेल्फ आइसोलेशन पीरियड, वो जो लोग एक वर्स्ट स्टेज में कोविड में चले जाते हैं, वो कुछ नहीं होने दिया उसको सिर्फ एक माइल्ड लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल था और माइल्ड फीवर से ही उसका वो कोविड पीरियड पास कर दिया. तो गुरुजी ने ये याद दिलाया कि दैट एक्स्ट्रा प्रसाद विच शी गॉट इन बड़े मंदिर वाज अ ब्लेसिंग फॉर हर, एंड दैट्स हाउ ही ब्लेस्ड माय सिस्टर नम्रता कि आज अगर उसको कोविड हुआ भी तो वो इतनी इजीली वो पीरियड, वो फेज उसका पास आउट हो गया. एंड गुरुजी ब्लेस्ड हर. सो संगत जी, यू शुड, आई थिंक वी शुड नेवर थिंक अबाउट कि अरे ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, गुरुजी की क्या लीला. हमें जानने की जरूरत ही नहीं है. टोटल सरेंडर एंड लेट गुरुजी डू व्हाटएवर ही वांट्स, क्योंकि हम तो सोच भी नहीं सकते कि उनकी पावर्स, उनकी लीला हमारे पीछे हमें ब्लेस करने की कितनी बियॉन्ड है, कितनी डीप है. सो आई थिंक मैंने तो अपना दिमाग ही बंद कर दिया है. मतलब आई डोंट इवन पॉन्डर ओवर एनीथिंग, एनी गुरुजीज दर्शंस और एनीथिंग, बिकॉज आई नो गुरुजी ने ये जो दिखाना है वो हमें हमारे फ्यूचर के लिए या प्रेजेंट के लिए कुछ ना कुछ तो है उसके पीछे. सो शुक्राना गुरुजी फॉर लुकिंग आफ्टर माय सिस्टर. एंड I'll go back again. So in 2015, Guruji blessed me with my first daughter, Rubani. And then in 2017, Guruji blessed me with another daughter called Serene.
So in between these 2 years, I was not able to attend satsangs a lot. बहुत मुश्किल होता था because I had to look after my daughters and I didn't. Although my husband Paul, he used to uh, babysit them, but I didn't like कि मैं बच्चों को घर रात को छोड़कर, जब उनका एक रूटीन सेटअप होता है, उनको छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर मैं सत्संग अटेंड करूं. और तो सत्संग अटेंड करना बहुत मुश्किल था, और घर में सत्संग लंदन में करना भी बहुत मुश्किल था, तो मैंने कभी सत्संग घर में किया भी नहीं था. सो जस्ट गुरु जी के सत्संग पढ़ के और मंत्र जाप करके वैसे ही 1-1.5 साल मेरा गुजरा. तो जब मेरी छोटी बेटी सिरीन, वो भी गुरुजी की ब्लेस्ड बेटी है, बिकॉज वो भी मंडे को बॉर्न हुई, गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, मंडे बॉर्न है. And again, her date of birth totals up to 7 again, as well. So they both are blessed daughters of Guruji. So when she was around 6 months old, this is another satsang I'm going to start now. Ki Guruji, how he blessed us with a new life, me and my daughter, younger daughter Serene. हम रुबानी को नर्सरी ड्रॉप कर कर आ रहे थे, एंड in the car it was just me and my little daughter Serene, younger daughter, और we were on a motorway A4. और उससे 2 दिन पहले ही I decided that I will attend a satsang, and जिस दिन मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी उसके नेक्स्ट डे ही मैं नीतू आंटी के घर सत्संग अटेंड करने जा रही थी. एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि oh my god, Guruji, after so long I'll be going to attend a satsang, and I'm so happy to come and soak in all the positivity and all your blessings, and take them home to and please bless my children and my whole family, my husband, everyone. तो जैसे ही मैं गाड़ी चला रही थी, मैं बस माइंड में गुरुजी से ऐसे बातचीत चल रही थी, एंड मुझे गुरुजी, बहुत बहुत तेज बारिश हो रही थी उस दिन, और गुरुजी ने मुझे एक विजन दिखाया जैसे कि अभी गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला है, एंड बचो आप. तो वैसे ही हुआ. विद इन 2 or 3 minutes I was on a motorway, so obviously I was driving fast and it was raining very heavily. अचानक से मेरे सामने एक गाड़ी आई और उसने बहुत तेजी से ब्रेक मारी, और मुझे भी बहुत ही तेजी से ब्रेक लगानी पड़ी कि मैं बचूं और मेरे बेटी बच जाए. एंड गुरुजी की मेहर से हम सब ठीक रहे. गाड़ी का एक्सीडेंट कुछ नहीं हुआ, कोई कोलिजन नहीं हुआ. वो जैसे गुरुजी ने ब्रेक्स दबाई और हम बच गए. बट जो गुरुजी का गाड़ी में स्वरूप था वो टूट गया. सो गुरुजी इंस्टेंटली मेड मी रियलाइज, मुझे 1 सेकेंड भी नहीं लगा, मैंने शुक्राना किया गुरुजी का और रियलाइज किया कि ये तो गुरुजी ने जो कष्ट आना था वो गुरुजी ने अपने ऊपर ही ले लिया, और उस स्वरूप का शीशा टूट गया. गुरुजी का फेस जो था वो इंटैक्ट रहा, उसको कुछ नहीं हुआ, बट जो स्वरूप था वो पूरा टूट गया, डैशबोर्ड से निकल आया और उसका शीशा टूट गया. सो ये गुरुजी ने रियलाइज कराया कि ये बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था आप दोनों पर, एंड आई हैव सेव्ड यू. सो थैंक यू गुरुजी अगेन फॉर ब्लेसिंग माय चाइल्ड एंड माय सेल्फ. और आपने हमारे बुरे कर्म अपने ऊपर लिए और हमें नई लाइफ बख्शी. शुक्राना गुरुजी. लेट मी नो if I'm loud enough again. Shukrana. So I'll go to another satsang. This is how my journey continues, and Guruji की असीम कृपा रही है हम सब पर, मेरे हस्बैंड पर, उनकी हेल्थ पर, ऑल अराउंड. गुरुजी ने कभी कमी महसूस होने नहीं दी कि इस चीज़ की कमी भी हो सकती है आपकी लाइफ में. परेशानियां ज़रूर आती हैं, बट पॉजिटिविटी जो है ना, वो गुरुजी ने सिखाया कि पॉजिटिव रहो, अच्छे कर्म करो और सब कुछ अच्छा होगा. सो
in year 2018, we decided to move out of London and we came to Birmingham. So Birmingham आए हम यहाँ पर and we moved in end of the year of 2018. We moved here and यहाँ पर भी मैंने फटाफट connect किया through Guruji Maharaj website again and to find out if यहाँ Birmingham में कोई सत्संग होते हैं या नहीं. And I found out that यहाँ पे भी एक बहुत प्यारा गुरु परिवार है गुरुजी का और छोटा सा प्यारा सा परिवार है हमारा यहाँ पे. Very nice people. And I got in touch with Sunandan uncle and he shared, he added me to the group and we used to share satsangs and but satsang kam hote the yahan par. So when I came here in September, the first satsang I attended was in the month of November at Avinash Auntie's house, who is the mother of our Guru Parivar. We treat her as our mother and indeed she is our mother. Guruji, please bless her. She's a very sweet lady, a sweetheart, very kind, down to earth, गुरुजी की डिवोटी. तो उनके घर मैंने सत्संग अटेंड किया and I met all the Guru Parivar and we shared our satsangs. It was a nice experience. And then in the month of January, Joy Didi did a satsang. Our angel, our messenger of Guruji, we call her as a messenger of Guruji. उन्होंने अपना सत्संग किया एक बड़े हॉल में and जहाँ वहाँ पे मैं सत्संग में गई और मैं बैठी तो बहुत अच्छा लगा because लंदन से भी संगत आई हुई थी और अच्छा लगा उनसे कनेक्ट होकर and गुरुजी के साथ बैठकर and मन में बस एक ख्याल आया कि अब तो यहाँ पे मेरे इन-लॉज नहीं है, I can do a सत्संग है and it would be nice कि मैं यहाँ पे अपने घर में सत्संग करूँ. तो जैसे ही सत्संग फिनिश हुआ, I got in touch with Joy Didi and I said, Didi, I really want to do a satsang and will you help me? Please help me. Like मुझे तो कुछ भी नहीं पता है सत्संग कैसे ऑर्गेनाइज करना होता है. मुझे तो जोत भी जलानी नहीं आती है, मुझे जोत क्या होती है वो भी नहीं पता है कैसे करते हैं. So please, you know, you will have to come before satsang starts and आपको ही दरबार बनाना पड़ेगा and आप मुझे सिर्फ बता दो क्या क्या चाहिए and I will bring that. So I got connected with Neetu Didi from London and she guided me step by step कि ऐसे सफाई करो किचन की, ऐसे घर की सफाई रखो, पूरा गुरुजी आ रहे हैं आपके घर में, सब कुछ क्लीन होना चाहिए. It doesn't matter, you don't need to spend money, you don't need to buy new things, but साफ चीजें यूज करो, सफाई रखना, सब कुछ साफ होना चाहिए because Guruji loved cleanliness. So that's how I followed and Guruji ने पहला सत्संग कराया in the month of February. On 1st of Feb गुरुजी ने सत्संग करवाया and सत्संग के दौरान इतनी खुशी थी, खुशी के आंसू ही बहते जा रहे थे कि गुरुजी मेरे घर आए हैं and it was so nice, such a nice feeling कि संगत घर पे आई है और मैंने गुरुजी के लिए लंगर बनाया और सब सेवा खुद की. बहुत अच्छा लगा, कोई थकावट नहीं थी जैसे होती है पार्टीज के लिए ऑर्गेनाइज करने में. नो वे, सत्संग के लिए तो गुरुजी खुद ही एनर्जी बूस्ट अप कर देते हैं एक संगत में. तो ऐसे ही हुआ एंड Joy Didi was sitting inside in the darbar and I was in the kitchen and हम दोनों को सेम थॉट्स आ रहे हैं कि यार गुरुजी ऐसा नहीं हो सकता कि आप एवरी मंथ सत्संग ऑर्गेनाइज कराओ हम मेरे घर में, कितना अच्छा होगा. बर्मिंघम में ऐसे रेगुलर सत्संग होते भी नहीं है और अगर ऐसे होगा तो संगत को भी एवरी मंथ सत्संग अटेंड करने को मिलेगा और साथ ही साथ हमें भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, सबको ब्लेसिंग्स मिलेंगी. और मैं ये किचन में गुरुजी के साथ बोल रही हूँ और अंदर जॉय दीदी गुरुजी के साथ टेलीपैथिकली बोल रही हैं कि गुरुजी आई विश ये सत्संग एवरी मंथ हो, का वीकली ना हो तो मंथली तो हो जाए, आई विश ऐसे हो जाए.
तो ऐसे ही हुआ, जैसे ही हमने बाद में सत्संग फिनिश हुआ और आई शेयर्ड माई थॉट्स विद जॉय दीदी, शी सेड यू नो व्हाट, इवन आई वाज टॉकिंग टू गुरुजी एंड आई थिंक गुरुजी हैज ऑलरेडी ब्लेस्ड यू दैट यू शुड डू मंथली सत्संग्स. एंड नो टर्निंग बैक, नो डाउट गुरुजी ने ब्लेस किया. एंड from last year 2019 February से अब तक Guruji has been blessing us with monthly satsangs. Though in this COVID period it has been very difficult, but I know this, we will pass through this as well. These are our testing times. ये भी गुरुजी इतने प्यार से कटवा रहे हैं, इतनी पॉजिटिविटी से कटवा रहे हैं कि there is no looking back. किसी चीज़ की कमी ही नहीं है. सो शुक्राना गुरुजी, अब तक आप ब्लेस करते आए हो सत्संग से. सो दिस इज अनदर स्टेज विद गुरुजी. नाउ आई विल शेयर अनदर सत्संग विद यू संगत जी, जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया. सो लास्ट ईयर व्हेन आई शेयर्ड माय हस्बैंड्स हेल्थ इश्यूज विद द संगत कि ऐसे उनको अक्यूट पैंक्रेटाइटिस है, which is a lifelong illness, जानलेवा बीमारी है. तो आई रियली वांट अगर गुरुजी का जल प्रसाद मिल जाए मुझे. और तो बहुत इतनी कहते हैं ना कि गुरुजी की संगत परिवार इतने हेल्पफुल होते हैं. इंस्टेंटली आप एक चीज मुंह से निकालो और वो दूसरे सेकंड आपके पास है. तो वही हुआ. मैंने सिर्फ इतना बोला कि मुझे गुरुजी का जल प्रसाद चाहिए और नेक्स्ट सत्संग में मुझे गुरुजी का जल प्रसाद मिल गया. एंड देन आई हर्ड अबाउट गुरुजी's ब्लेस्ड लोटा. So at that time in last year March, Sunandan uncle was going to in Delhi and he said that yes, I will bring a blessed lota for your husband and we will pray for his well-being, for his health, and Guruji will bless him. तो सुनंदन अंकल गए और वो पॉल के लिए ब्लेस्ड लोटा लेकर आए एंड ही स्टार्टेड हैविंग गुरुजी's जल प्रसाद फ्रॉम दैट लोटा एंड गुरुजी केप्ट ब्लेसिंग हिम. जो पीरियड्स ऑफ जो अटैक्स एवरी मंथ एवरी 2 वीकली होते थे वो बहुत कम होते गए, मंथली होने लगे, फिर मंथ के बाद क्वार्टरली होने लगे, अब हाफ ईयरली होने लगे हैं. सो गुरुजी आराम आराम से वो कष्ट भी टाल रहे हैं. जो हमारे कर्म है वो तो हमें भोगने ही पड़ते हैं. सो बट वो जो पीड़ा होती है ना वो गुरुजी कैसे कम कर देते हैं वो हम भूल ही जाते हैं. जो हम नेगेटिविटी गैदर करते हैं ना अपने आसपास वो पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं गुरुजी विद हिज ब्लेसिंग्स, विद हिज सत्संग्स. वो उस ट्रांस में हम भूल ही जाते हैं. वी गो विद द फ्लो, वो गुरुजी करते हैं. सो ऐसे ही एक बार पॉल के कजन्स आए यहाँ पर हमारे घर बर्मिंघम लंदन से फॉर अ नाइट एंड ही सॉ दिस ब्लेस्ड लोटा फ्रॉम गुरुजी. और उन्होंने कहा ये क्या है तुम यहाँ पे, व्हाट इज दिस लोटा फॉर एंड do you have water from this? So I said yeah, this is a blessed Guruji lota and ये पॉल के लिए ब्लेस होकर आया है गुरुजी के बड़े मंदिर से. और क्योंकि आप तो जानते हो कि वो कितने बीमार रहते हैं और अब उनकी तबीयत बहुत ठीक होने लग गई है और गुरुजी उनको ब्लेस कर रहे हैं. तो उन कजिन को भी स्किन की कोई प्रॉब्लम थी. तो उन्होंने कहा कि ज्योति can you please, if I request you something, can you arrange this blessed lota for me as well? I said why not, I will definitely ask any of the sangat whoever is going to India कि वो आपके लिए भी ये लोटा ब्लेस करवा कर लेकर आए. तो मैंने सिर्फ उनको कहा कि आप अपना नाम और अपनी जो स्किन की प्रॉब्लम है उसका नाम मुझे टेक्स्ट कर दो, लाइक फुल नेम एंड एवरीथिंग, वो भेज दो एंड आई विल फॉरवर्ड इट टू whoever संगत इज गोइंग. आई विल रिक्वेस्ट देम टू ब्रिंग अ लोटा फॉर यू. तो उस टाइम पर पवन अंकल जो है हमारे गुरु परिवार के बहुत ही अच्छे संगत,
वो एवरी मंथ उनका इंडिया बिजनेस रिलेटेड ट्रिप होता ही रहता था. बट समहाउ आई डोंट नो व्हाई आई कुडंट गेट इन टच विद हिम एंड आई डिडंट आस्क हिम टू ब्रिंग अ लोटा, ब्लेस्ड लोटा, बिकॉज वो जब भी दिल्ली जाते थे तो वो बड़े मंदिर जरूर जाते थे. बर्मिंघम गुरु परिवार में जिसके घर में भी गुरुजी का बड़ा स्वरूप है या छोटा स्वरूप है या लोटा है या लॉकेट स्वरूप है, वो सब पवन अंकल हमारे लिए लेकर आते थे बड़े मंदिर से. एंड इतने हम्बल हैं कि जो भी हम बोलते थे वो हमारे लिए फट से आ जाता था. जो मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि दिल्ली में हम रहते हुए भी आज तक हमने ये नहीं, हमारे लिए इतना मुश्किल है एक लोटा ब्लेस करवाना, और यहाँ पे हम बर्मिंघम में बैठे हुए भी गुरुजी हमारे लिए इतनी इजीली सब कुछ ब्लेसिंग्स भेज देते थे. तो that time I couldn't get in touch with Pawan uncle, and Veeran auntie, one of our Parivar Sangat, was going to Delhi. So she called me and she said, Sanjoti, if you need anything, please let me know. I will bring it for you. I'm going to Bade Mandir as well. So I said, Auntie, I don't need any materialistic thing, but I'll ask you for only one thing. Please get me a blessed lota Bade Mandir se for my cousin. She said, yes, of course, I will bring it. I said, मुझे इतना पता है कि जब भी पवन अंकल दिल्ली बड़े मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे जो भी सेवादार लोटा ब्लेस करते हैं वो संगत का नाम जरूर मांगते हैं. तो मैं आपको अपने कजन का नाम और उनकी जो इलनेस है वो आपको मैसेज कर देती हूँ कि आप जब जाओगे तो उनके नाम का लोटा ब्लेस करवा देना. दिस इज हाउ वी यूज टू फॉलो द गाइडलाइंस. तो वो भी वैसे ही एक लोटा खरीद कर बड़े मंदिर गए और उन्होंने सेवादार अंकल से बोला कि प्लीज ये लोटा ब्लेस कर दीजिए, मैं यूके से आई हूँ एंड इस नाम पर ये लोटा ब्लेस कर दीजिए और इनको ये प्रॉब्लम है. तो उन सेवादार ने बहुत उससे बोला कि आंटी हमें नाम की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बीमारी का नाम बता दो कि क्या स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज क्या है, जो भी है. उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि उनको स्किन इलनेस है. तो उन्होंने कहा हमें नाम वाम नहीं चाहिए, बस आप हमें लोटा लेकर आ दो इस दिन और हम लोटा ब्लेस कर देंगे. तो वो लोटा बिना नाम के ब्लेस होकर यहाँ पे यूके आ गया. एंड आफ्टर अ मंथ वीरन आंटी गिव मी दैट ब्लेस लोटा. But because I am in Birmingham and my cousin is in London, 4 महीने तक मैं उसे मिली नहीं. ऑल्दो मैं लंदन जाती भी थी पर किसी ना किसी तरीके से मैं भूल जाती थी वो लोटा लेकर जाना, और वो लोटा मेरे पास ही रहा और मैं उनको वो लोटा नहीं दे पाई. तो वो लोटा नहीं दे पाई. एंड इन बिटवीन संगत जी, फ्रॉम पास्ट 2-3 years after my younger daughter was born, I was facing with this autoimmune disease, skin issue, जो हाथों पर और मेरे आर्म्स और मेरे फेस पर छोटे छोटे स्किन टैग्स आने लग गए थे. एंड स्किन टैग्स चलो छोटे थे, when they started growing big, they started giving me a lot of pain, and it was all on my right hand mainly, जिससे एक आम हम लोग काम करते हैं राइट हैंड तो बहुत काम कर, वही उसी से आप काम करते हो. तो इतना ज्यादा पेन होता था कि ब्लड आना शुरू हो जाता था कई बार, बिकॉज दे वर सो इची एंड समटाइम्स द पस यूज्ड टू ooze आउट. आई कंसल्टेड लॉट ऑफ डॉक्टर्स बट यहाँ पे वेटिंग इतनी ज्यादा थी फॉर डर्मोलॉजिस्ट्स एंड ऑल, सो आई कुडंट गेट थ्रू एनी गुड ट्रीटमेंट फॉर दिस स्किन. तो self-confidence, I was losing my self-confidence because I used to love my hands. I used to love my hands and I'm fond of jewelry. तो rings पहनने का बहुत शौक था, बैंगल्स कड़े पहनने का बहुत शौक था. तो ये सब कुछ मैंने छोड़ दिया था डालना पहनना, बिकॉज हाथ ही इतने बदसूरत हो गए थे तो मैंने छोड़ दिया पहनना. एंड मैंने जितनी भी दवाइयाँ करनी थी वो भी कर चुकी थी, कोई क्योर नहीं था. तो मैं सिर्फ गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी नाउ इट्स योर प्रॉब्लम, यू हैव टू क्योर मी बिकॉज आई एम हेटिंग, आई कांट इवन लुक एट माई हैंड्स एनी मोर. तो पता नहीं एक रात ऐसी मेरे गुरुजी ने, ऑफ कोर्स ये हमारा तो दिमाग है नहीं, गुरुजी ने मेरे माइंड में डाला कि वो लोटा पड़ा है
वो लोटे से पानी पीना शुरू करो, जो मेरे कजन के लिए ब्लेस्ड होकर आया था। तो 2-3 हफ्ते तो आई स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर इट कि वेदर आई शुड हैव लोटा वाटर फ्रॉम दैट लोटा, बिकॉज वो लोटा तो मेरे कजन के लिए आया है। बट फिर यही थॉट आता था दिमाग में कि वो तो उसके नाम पर ब्लेस होकर नहीं आया है, तो आई कैन हैव इट। और मैं तो अब पता नहीं कब जाऊंगी लंदन और मैं कब उसको दूंगी। तो नेक्स्ट डे से ही मैंने उस लोटे से पानी पीना शुरू कर दिया, जल प्रसाद पीना शुरू कर दिया। अगेन से संगत जी, मैंने सिर्फ उस लोटे से इतनी आलसी हूं मैं कि मैं सिर्फ उस लोटे से पानी पीती थी। मैं जो गुरुजी ने एक गाइड किया हुआ था संगत को कि आधे रात को लोटे को नींबू नमक से धोकर या राख से धोकर पानी भरकर रखो एंड सुबह आधा पानी पियो और आधे पानी से नहाओ, वो वैसा मैं कुछ नहीं करती थी। मैं सिर्फ उसको नींबू और नमक से धोकर रात को पानी भर के सुबह पूरा दिन धीरे धीरे करके सुबह उठकर धीरे धीरे उसी लोटे से पानी पीती थी। एक महीना मैंने उस लोटे से पानी पिया, जल पिया, एंड ओवरनाइट मेरे हाथों से, मेरे फेस से वो स्किन टैग्स गायब, दे वैनिश्ड। सो दिस इज व्हाट आवर गुरुजी इज। व्हेन दे से कि जब ओल्ड संगत कहते हैं कि वो मिरेकल्स करते हैं या ब्लेस करते हैं, मिरेकल्स भी बोलो या ब्लेसिंग्स बोलो, जो भी बोलो, गुरुजी ब्लेस्ड मी। एंड वो स्किन टैग्स गायब, एकदम गायब, जो जिसमें से खून आता था, जख्म बन गए थे। आई कुडंट इवन कुक समटाइम्स बिकॉज उसकी स्टीम मेरे हाथों पे लगती थी, वो सब गायब हो गया। एंड Guruji blessed me. So thank you Guruji again, शुक्राना Guruji for taking away that illness। पता नहीं वो शायद सिर्फ skin tags नहीं थे, क्या थे, we shouldn't even go into that depth, and I don't really want to go into that depth because Guruji knows how he cures you, how he blesses you. So Guruji blessed me with this. सो वो लोटा देन उस लोटे से मैं पानी पीती रही। एंड वन डे माय कजन केम फ्रॉम लंदन एंड ही सेड कि ओ मेरा लोटा तो पड़ा हुआ है एंड अब मैं लेकर जाता हूँ। तो मैं चुप रही, आई वॉज टेकन अबैक कि ओके नाउ आई हैव टू गिव अवे दिस लोटा। सो एज अगेन आई रिपीट, वी आर फ्रॉम सिख फैमिली। तो वो मेरे कजन बिकॉज ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स, तो वो लोटा लेकर गए क्योंकि जितना मेरी जर्नी थी उस लोटे के साथ वो मेरी फिनिश हो गई। एंड आई थिंक अब गुरुजी मेरे कजन को ब्लेस करना चाहते थे, तो वो लोटा लेकर गए। बट जब वो घर लोटा लेकर गए तो उनके फादर थोड़े रिलक्टेंट थे और उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें हम लोग मानते नहीं हैं, सिख ही को मानो, गुरुद्वारे जाओ, गुरुद्वारे मत्था टेको, गुरु साहिब सब कुछ ठीक करेंगे एंड ऐसा करो बिकॉज दिस इज सच अ प्योर थिंग एंड हम किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, इसको जाकर तुम किसी रिवर में बहाओ। तो मेरे कजन ने कभी उस लोटे से पानी ही नहीं पिया, जल प्रसाद लिया ही नहीं, और उन्होंने जाकर उस लोटे को जल प्रवाह कर दिया। सो दिस इज हाउ गुरुजी इज। Maybe Guruji just that lota came, I think I got disconnected. So I was saying ki maybe Guruji sent that lota specially for me to cure my hand skin illness, and uska utna hi role tha मेरी लाइफ में, और गुरुजी ने वापस वो लोटा हमसे ले लिया। So शुक्राना गुरुजी। I'll share one last satsang. There are lots of satsangs to share, but Guruji, whenever you give me another opportunity, I will come back again and share मेरे प्यारे experiences with Guruji. So, when I was in London, we used to do Sukhmani Sahib Path in Ealing Gurdwara. This was also because of London Sangat and Tani auntie.
जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। और हम आई थिंक मंथली और वीकली वंस वी यूज टू गो टू ईलिंग गुरुद्वारा, एंड एज अ गुरु संगत, गुरु परिवार संगत लेडीज, वी यूज टू सिट एंड डू सुखमनी साहिब पाठ इन दैट गुरुद्वारा। और हम लंगर की सेवा भी करते थे वहां पर। तो जब भी जितना मौका मिलता था, गुरुजी जितनी मुझे सेवा बख्शते थे, मैं जाती थी गुरुद्वारे और पाठ में अपनी हाजिरी जरूर भरती थी और पाठ करते थे। और ऐसे ही मैं मैं यहाँ पे जब बर्मिंघम आ गई तो मुझे बहुत, आई यूज टू मिस इट अलॉट, कि काश यहाँ पे भी ऐसे कोई ग्रुप होता एंड वी कुड डू सुखमनी साहिब पाठ टुगेदर. So I shared these thoughts with Madhu auntie, our Madhu auntie from Birmingham Guru Parivar, and she said, why don't you do Sukhmani Sahib Path at your own home, and we would all love to come and join you, and this would be a great initiative for our this Birmingham Guru Parivar as well. And I would, although she is not a Sikh, but she said that I would also take a part in this, and I really want to recite Sukhmani Sahib Path with you. तो हमने सिर्फ ये बहुत ऑन अ लाइट नोट हमने ये बात की और मैंने बात खत्म हो गई. सो इसको 4-5 महीने हो गए और हम ये पाठ की बात हम भूल गए, हम कर नहीं पाए. बट इन बिटवीन दीज 4-5 months सुनंदन अंकल ने मुझे और मधु आंटी को सुखमनी साहिब की बुक्स दी, गुटका साहिब दिए, और विच वर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन. सो दिस वॉज ऑल्सो अ साइन कि हाँ गुरुजी, आई थिंक गुरुजी वांट्स कि हम सुखमनी साहिब का पाठ करें. बट अगेन पता नहीं क्या होता था, we couldn't do part. तो ऐसे हुआ. When this COVID period started in month of March, from my family, in-laws side and my family, all we used to do Sukhmani Sahib Path every day on Zoom platform. So we used to like distribute Ashtapadis to everyone, और हम लोग पाठ करते थे. पाठ सुखमनी साहब का पाठ करते थे, फिर उसके बाद रहराज साहब का पाठ करके अरदास से समाप्ति करते थे. तो ऐसे चला और एकदम से अचानक से आइडिया आया कि व्हाई नॉट आई आस्क माय गुरु परिवार संगत कि आप लोग सुखमनी साहब का पाठ करना चाहोगे या नहीं. तो ऐसे ही मैंने ऑन अ लाइट नोट मैंने ग्रुप में लिखा एंड आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, क्योंकि सिख तो बहुत कम है और सब नॉन सिख संगत थी. तो पर उनका जो इंथुजियाज्म देखा, उसको देखकर मैं इतनी खुश हुई दैट गुरुजी गेव अ ग्रीन सिग्नल दैट या नाउ यू गो अहेड एंड स्टार्ट. तो हमने, गुरुजी ने हमें पहली सेवा बख्शी ऑन बैसाखी, 13th of April, ऑन बैसाखी डे. गुरुजी ने हमें पहली बार सुखमनी साहिब पाठ करने का मौका दिया. गुरुजी की हाजिरी में हमने पाठ किया और बहुत अच्छा पाठ हुआ. बहुत खुश हुए संगत और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. एंड देन मधु आंटी ने बोला कि it was so amazing to hear this part as a co-reader as well. It was such a blessing. और सब ने यही रियलाइज किया कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है आज हम लोगों को सुखमनी साहिब के पाठ की सेवा करके. बट इन बिहाइंड ऑल दिस मुझे ये ज़रूर पता था कि गुरुजी ने ये चोजन डे चूज किया है हम सब के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए, नॉट ओनली मी बट द होल गुरु परिवार, कि हम पाठ कर सकें. तो ऐसे गुरुजी ने ब्लेस किया. एंड then I used to see on reading of Shiv Puran ki every Amrit Vela morning सुखमनी साहब का पाठ होता था रीडिंग ऑफ शिव पुराण पेज पर. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था कि काश मुझे कभी सेवा मिल जाए ऐसी और मैं भी लाइव सुखमनी साहब का पाठ कर सकूं. बिकॉज ये तो
मेरे डैड ने बचपन से ही ये डाला हुआ था कि पाठ करो, पाठ में ही सारी शक्ति है। तो बहुत मन करता था कि ऐसे कोई लाइव सेवा मिल जाए गुरुजी के लिए, गुरुजी की सेवा कर सके किसी भी तरीके से। तो ऑन 23rd of June I did an Amrit Vela satsang with our Guru Parivar through online Zoom platform again, and I shared the invites with the London Sangat, with Manchester Sangat and Birmingham Sangat. So अमृत वेला सत्संग हम कर रहे थे और उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं आज नितनेम का पाठ करूंगी संगत के साथ और उसके बाद शब्द गुरबानी से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा ही हुआ। और जब मैं जपजी साहब का पाठ कर रही थी, आई डोंट नो व्हाई गुरुजी ने मेरे माइंड में नीति आंटी का नाम बार बार आया और नीति आंटी मेरे दिमाग में आ रही थी। नीति आंटी इज नीति कोहली चोपड़ा आंटी, जो कल्याण करो गुरुजी ग्रुप को की एडमिन है। उनका माइंड में आता था बिकॉज आई वॉज इन टच विद हर ऑलवेज, वी यूज टू शेयर सत्संग्स विद ईच अदर। शी गुरुजी प्लीज ब्लेस her, she is a very humble soul, she does selfless सेवा। सो बस गुरुजी ने उनका नाम मेरे दिमाग में आता जा रहा था और मैंने सिर्फ उस दिन सुबह बैठ के फिर से गुरुजी से यही मांगा था, प्लीज गुरुजी कोई सेवा दे दो, मैं जहाँ आपकी हाजिरी में पाठ कर सकूं, नित्य नेम का पाठ कर सकूं। तो जब सत्संग चल रहा था, तो उस दिन 23rd जून को जब सत्संग चल रहा था, तो मैंने देखा कि नीति आंटी हैज जॉइंड द जूम लिंक। And I was like, Neeti Chopra auntie, is this the same Neeti Chopra auntie from Dubai? I was still a bit dicey about it. So satsang finish hua, as we all share our satsangs, we shared our satsangs on Zoom, and जैसे ही हमने switch off किया, Neeti auntie sent me the recordings of our satsangs on WhatsApp. And instantly I got an answer that ये तो वही नीति आंटी हैं जिनके बारे में मैं सुबह सोच रही थी, but how come she has joined the Zoom link, because I never shared it with her. So then she said that, you know, my sister lives in London and she shared your Zoom link with me, और उसने कहा कि अमृत वेला सत्संग हो रहा है, you also join and please come and join, although I will be late but you join. सो शी सेड कि मुझे उन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली, नीति आंटी ने बोला कि मैंने उसको मना किया था कि आई कांट जॉइन अमृत वेला सत्संग, इट्स टू अर्ली फॉर मी, बट आई स्टिल ट्राई। बट शी सेड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, एंड मैं उठी और मैंने सीधा तुम्हारा जूम लिंक जो उसने मेरे साथ शेयर किया था, एंड आई जॉइंट योर सत्संग। आई वाज लाइक नो 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 नीति आंटी, दिस इज beyond what we are talking about, because गुरुजी ने आपका नाम मेरे आगे बार बार फ्लैशबैक कर रहे थे सुबह, जब तक अभी आपने ज्वाइन भी नहीं किया था सत्संग। तो मैंने ऐसे शुक्राना, ऑफ कोर्स हमने शुक्राना किया कि देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड दिस, एंड मैंने ऐसे ही उनसे पूछा, बिकॉज शी इज फ्रॉम दुबई एंड अतुल जी इज ऑल्सो फ्रॉम दुबई। तो मैंने कहा कि नीति आंटी, कैन आई गेट सम सेवा, किसी भी पाठ की सेवा, जैसे रीडिंग ऑफ शिव पुराण पर सुखमनी साहिब का पाठ होता है, मुझे नितनेम का पाठ की सेवा मिल सकती है? तो उन्होंने कहा कि नितनेम पाठ तो नहीं होता है, सुखमनी साहिब का पाठ होता है, एंड do you know what, Atul ji has been looking for readers from past 2 weeks and it has been very difficult, we can't find any readers, and look, do you really want to do Sukhmani Sahib Path ki seva? Are you really fluent in Punjabi? I said yeah, but I was looking for Nitnem part. But she's like, नहीं, अभी तो सुखमनी साहिब का पाठ हो रहा है और तुम सुखमनी साहिब पाठ की सेवा करना चाहोगे तो मैं आपको अतुल अंकल से लिंक अप कर देती हूँ, एंड ही विल गेट इन टच विद यू। आई सेड जो गुरुजी चाहते हैं
आई विल डू. अगर सुखमनी साहिब पाठ की सेवा देना चाहते हैं, आई डोंट माइंड, आई विल डू सुखमनी साहिब पाठ की सेवा. और उस टाइम तक मैंने ये नहीं सोचा था कि ये सुखमनी साहिब की पाठ की सेवा कौन से टाइम पर होती है. So because I have two little girls, so it's quite difficult to uh, take out time during the day. They need you, as and they were at home at that time because of COVID. तो वो भी गुरुजी ने सॉर्ट आउट कर दिया. अतुल अंकल से विदिन 10 मिनट्स नीति आंटी के साथ बात हुई और अतुल अंकल से भी बात हो गई. और अतुल अंकल ने बोला कि आप अपना डे चूज कर लो, वीक में 1 या 2 बार आप सुखमनी साहब का पाठ करो. बट वॉन्ट इट बी टू अर्ली फॉर यू टू डू पाठ because you're from UK? I said, what time are you talking about? And he said, 3:30 in the morning. I said, oh no, you know what? That's the best time कि गुरुजी ने choose किया है मेरे लिए, because at that time I can do part peacefully and my children are sleeping. I don't have to worry about them or neither my household chores. So it will be the best time. वो भी गुरुजी ने अरदास उसी वक्त सुन ली कि यू नो एज अ मदर, एज अ गृहिणी, आपको गुरुजी आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही आपको गाइड करते हैं, आपको ब्लेस करते हैं. तो वो भी सॉर्ट आउट हो गया. एवरी वेडनेसडे गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी सुखमनी साहिब पाठ की. बट मेरे अंदर तो हमेशा यही चलता रहता था कि मुझे नितनेम का पाठ करना है अमृत वेला गुरुजी के साथ. तो मैंने अतुल जी से पूछा कि नितनेम पाठ आप नहीं करते हो रीडिंग ऑफ शिव पुराण पेज पर. ही सेड अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ, मे बी इन द फ्यूचर आई विल लेट यू नो. सो वो भी गुरुजी ने सुना, वो भी अरदास गुरुजी ने सुनी और वो भी गुरुजी ने पूर्ण किया. सो लास्ट मंथ आई सॉ दैट I think it's Natasha aunty who does every day नित्य प्रत, वो every अमृत वेला वो नितनेम का पाठ करती हैं. गुरुजी प्लीज ब्लेस हर, शी इज सच अ गुड पाठी. वो गुरुजी की हाजिरी में नितनेम का पाठ करती हैं. तो जब मैंने ये देखा मैं इतनी खुश हुई और मैंने कहा अब तो गुरुजी आप मुझे भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो. एंड आई एम गोइंग टू टेक्स्ट अतुल जी एंड आस्क हिम इफ आई कैन गेट 1 day फ्रॉम अ वीक कि मैं भी सुखमनी साहब नितनेम का पाठ कर सकूं गुरुजी आपकी हाजिरी में. और वो भी गुरुजी ने विश पूरी की. अतुल जी ने बोला कि आप खुद ही अपना डे चूज करो, वंस अ वीक आप भी पाठ कर सकते हो. सो ही इज सच अ स्वीट पर्सन, सच अ हम्बल संगत. अतुल जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस सेवा. नितनेम का पाठ की भी सेवा मिल गई. गुरुजी आपकी हर एक विश पूरी करें जैसे गुरुजी हमारी विशेस पूरी करते हैं. एंड ऐसे ही जर्नी चलती गई. आई थिंक आई हैव गॉन फार बियॉन्ड 1 hour एंड गुरुजी ब्लेस्ड मी अगेन. सो संगत जी, never lose hope because hopes are like paper boats. बस गुरुजी का नाम लो और अपने कर्म करो एंड लेट इट गो. गुरुजी विल लुक आफ्टर यू, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. If it's great, then great results will come out. Guruji will yield great results for us. And if it fails, इसका मतलब है कि we have to work hard on our karmas. We have to work out hard on our karmas and we have to improve ourselves. So आप कभी भी hope नहीं छोड़ो, because if one hope fails, we can have another hope. And we should never give up. This is what I would say. मैं तो कुछ भी नहीं हूँ अभी तो. बस जर्नी स्टार्ट हुई है गुरुजी के साथ. There is a lot of learnings which we need to learn. We all have to improve. I have to improve. I am not preaching here, but you know, sometimes you need selfie to remind and note to yourself that you are the wonder created by our wondrous almighty creator Guruji. So the journey with Guruji is inwards. We need to dive deeper within the teachings of Guruji, Vachans and Gurbani to self-realize
which I am still trying to achieve, and I am still far, far beyond what Guruji wants me to be. So I'll end here, and thank you for listening to me. गुरुजी ने आज ये मौका दिया कि मैं अपनी ब्लेसिंग्स आपके लिए शेयर करूं, आपके साथ शेयर कर सकूं. शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी.